So before that, we have already done with the Finance Commission. What is actually Finance Commission is, what are the basic rules, how it gone pass out, and number of members, and other afterwards we have done. So far we have already gone through with the 15 Finance Commission. So reports are being done. So 15 people and their years we have already done. Now afterwards we said that as we need to compare the 14th and 15th Finance Commission, so we have already done with the 14th. As I told you, the few recommendations has been done into the 15th Finance Commission that we will discuss today. And then after, we'll talk about a bit of differences between the both and the 15th and the 15th. Okay. So 15th Finance Commission, as we said that it was started with the presidentship of N.K. Singh. Okay. And this is for the 2021 to 2021 and so onwards to 25-26. So ये 5 years का इसका tenure है. We know that earlier we have already done that whenever we talk about Finance Commission, we need to discuss the number of people, the number of things that has to be shared between the state and central. Okay. So, I have discussed the basic things. The first one, it is towards 2021 onwards, 2025 and 26. N.K. Singh, under his presidentialship, and further we can say one more thing important we have to discuss is under the 15th Finance Commission will look impact of GST on the finance of central and state. जो important चीज इसमें आई, we will discuss about the impact of GST on the finance of सेंट्रल एंड स्टेट. सेंट्रल और स्टेट की इनकम के सोर्सेस बदल गए हैं जीएसटी की वजह से. इस वजह से जो फाइनेंस कमीशन के पास फंड्स इकट्ठा होंगे वो भी अलग हो जाएंगे, है ना, डिफरेंस हो जाएगा. सो हियर वी नीड टू टॉक अबाउट हाउ बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी हाउ इट इम्पैक्ट्स द टोटल फाइनेंस, एंड इफ सेंट्रल इज गेटिंग अ डिफरेंट अमाउंट हाउ दे विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू द स्टेट्स. स्टेट को कैसे अलग अलग बटेगा. So we are coming towards the three basic things that we have already done. उन्हीं 3 points को हम दोबारा से discuss कर रहे हैं. First of all, let's talk about vertical devaluation. Vertical devaluation means to say like from this way. It is from सेंटर टू स्टेट. तो सेंटर से स्टेट की तरफ जब वो शिफ्टिंग हो रहा है तो वो डिवोल्यूशन जो है हमारा वर्टिकल डिवोल्यूशन है. As we said that in the previous one, we said that 42% was being considered for the central to state, but now they have decreased the 1% of that money to be shifted from central to state. So it is coming towards 41%. So 1% is been decreased. टोटल फाइनेंस में जो परसेंटेज शेयर शिफ्ट हुआ है वो 1% का हुआ है. सो वी कैन राइट डाउन द शेयर ऑफ स्टेट इज 41% is 41%, while in 14th Finance Commission that was 42%. इससे प्रीवियस फाइनेंस कमीशन में जो शेयर था स्टेट का वो 42% था, जो कि अब डिक्रीज होके 41% हो गया. डन. और वो जो 1% का चेंज आया है वो चेंज इस वजह से आया है बिकॉज वी हैव मेड सम रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स अबाउट 1% ड्यू टू द चेंज इन द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नाउ इट बिकम्स टू बी अ यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख. तो इस वजह से क्योंकि स्टेट को यूटी को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो वो इसलिए वो फाइनेंस का टोटल बजट में स्टेट्स के ऊपर कम चला गया और 1% उन्होंने यूटी के ऊपर ज्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया. तो दैट 1% चेंजेस ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द JNK एंड इट्स बीइंग टू अ लद्दाख एंड JNK. इसका इकट्ठा यूनियन बनने की वजह से, है ना, यूनियन सेंट्रल यूटी बनने की वजह से हो गया. तो पहला चेंज तो ये 42% का है. तो here you can compare the both. The 14th Finance Commission says the 42% of the state share and it says 41% of the state share. That is the first thing. Second is saying that it's a horizontal. Horizontal devolution.
इट मीन्स टू से दैट नाउ स्टेट में हमने ऐसे किया था ना, from above to below, it is coming from center to state, but here we are dividing between the states. हम states के बीच में divide कर रहे हैं कि किस state को कितना देना है. So it is a allocation between the states. So you can write down this thing कि important चीज क्या है. This is allocation between states. States के बीच में किसको कितना कितना देना है, उसके बीच में हमने shifting किया. Done. So they said that अभी if you remember हमने जब स्टेट को पैसे बांटे हैं तो वो किस बेसिस पे बांटे थे? We have some parameters. One was population, forest and ecology, area and एक हमने ऐड किया था इसमें इनकम डिस्प्ले डिस्टेंस. अभी देखिए हमने इसका परसेंटेज डिवाइड किया था 14 एंड 15 में. दे सेड दैट अर्लियर हमने पॉपुलेशन को पैरामीटर माना हुआ था, इसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन में हमने इसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सॉरी, इसको हमने इसके टोटल पार्ट को इसमें डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पर भी कुछ शेयर इसको दे दिया. लेकिन इफ यू गो एंड चेक आउट योर कॉपीज यू कैन मेक अ टोटल दैट्स नॉट इक्वल्स टू 100%. गो फॉर इट. So the rest of 2.5% that is left out, that is to this. It's 12.57 I believe. Area और population 15 था पहले, इसको हमने कम कर दिया ना. 45% था हमारा income displacement or distance, and the forest is ecology is 10%. So if you will make a total of this without this, it's not equals to 100%. क्योंकि हमने इसी को डिवाइड कर दिया ना 12% में और फिर 2.5 रह गया, इन्हीं का तो टोटल बन के बनेगा ना 15 बनेगा टोटल. So that's why this is total to be included in next time period, same as this has been included in very this. ये दो चीजें ऐड हुई हैं. तो आप जब 15 फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे तो आप ये कहेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल आपने डिवाइड किया वो हॉरिजॉन्टल किसके बेसिस पर डिवाइड किया जाता है? इन क्राइटेरिया के बेसिस पे. ये हम क्राइटेरिया पहले कर चुके हैं तो आपको इजीली पता चल गया कि जब आप सेंट्रल जो है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में पैसा बांटती है, एलोकेशन ऑफ फंड्स करती है, तो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे करती है? इस क्राइटेरिया के बेसिस पे करती है. वो चेक करती है कि आपकी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, बढ़ रही है या कम हो रही है. अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली सेंट्रल नीड टू गिव यू मोर फाइनेंस, लेस देन यू नीड टू लेस फाइनेंस. फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, आप अपने स्टेट में फॉरेस्ट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए कितने कीन हैं, कितने एफर्ट्स कर रहे हैं. एरिया कितना है? मोर एरिया विल गेट मोर फाइनेंस एंड लेस एरिया विल गेट लेस फाइनेंस. Demographic performance, if your population you are taking more steps to control the population, आपकी स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स उठा रही है तो गवर्नमेंट आपको फाइनेंस ज्यादा करेगी, अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे. टोटल फर्टिलिटी रेट अगर आपकी कम हो रही है तो गवर्नमेंट आपको फाइनेंस ज्यादा करेगी. तो ये परफॉर्मेंस जो है दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ टू एलोकेट द फंड. फर्दर इनकम डिस्टेंस, आपके इनकम टोटल स्टेट की जो इनकम है वो हाईएस्ट इनकम से कितनी दूर है. Difference between the highest average income of the nation as well as the whatever the income at your state, उसके बीच का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा. अगर आप कम इनकम वाली स्टेट है तो आपको फाइनेंस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. अगर आप स्टेट हाई इनकम वाली है तो गवर्नमेंट नीड नॉट टू गिव यू कैन फाइनेंस, यू कैन गिव अ फूड टू योर पीपल बाय ऑन. एंड फर्दर एज अ टैक्स रिफॉर्म्स, आपकी स्टेट टोटल टैक्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है और टैक्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम कर रही है. टैक्स रिफॉर्म्स में हम ये भी कहते हैं कि अगर स्टेट, जैसे हमने आपसे बात की थी, कुछ टैक्स क्या होते हैं? सेंट्रल के होते हैं, कुछ टैक्स स्टेट के होते हैं. तो स्टेट अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए क्या नए रूल प्लान आउट कर रही है. हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ पंजाब.
Punjab shifted all the industries because they don't want more to tax on, they impose taxes on the industries, and Himachal reduced the taxes on industries, so that is being flourished into the industry, into the Himachal, and it is being collapsed into the Punjab. तो वो स्टेट की अपनी डिस्क्रिशन है कि वो कितने टैक्स लगाती है और अपनी ज्यादा से ज्यादा इनकम कैसे जनरेट करती है। तो स्टेट अपनी टैक्स के लिए कितने रिफॉर्म्स लेके आ रही, कितने इनकम जनरेट करने के लिए लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है, उसके बिहाफ पर भी आपको सेंट्रल जो है पैसे फंड करेगी। सो दैट इज अ सेकंड वे हाउ वी आर डिवाइडिंग द एलोकेशन ऑफ फंड्स टुवर्ड्स टू द स्टेट्स। इन स्टार्टिंग वी टॉकिंग अबाउट सेंटर टू स्टेट, देन आफ्टर इज हॉरिजॉन्टल। थर्ड वन इज ग्रांट इन एड, रेवेन्यू। अभी इसका थोड़ा सा एक अलग है, ग्रांट इन एड ही बोल सकते हैं इसको, बट दे आर डिवाइडिंग इनटू द ग्रांट इन एड टू द फिस्कल डेफिसिट्स एंड रेवेन्यू डेफिसिट्स। वो कहते हैं स्टेट सेंट्रल क्या चाहती है आपने टारगेट्स देगी ना आपको, हमें अपना टारगेट रखेगी कि हमारे डेट टू रेशो कम हो जाए बजट्स को इक्वलाइज करने के लिए। इसी तरह वो अपने जो रूल्स हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो स्टेट के ऊपर भी एम्फसाइज करती है कि हम अगर फाइनेंस आपको दे रहे हैं तो आपको अपने डेट्स को भी कम करना है, तो आपको अपने रेवेन्यू डेफिसिट्स को रिड्यूस करना है और फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट्स को भी रिड्यूस करना है। तो जो टारगेट सेंट्रल रख रही है, सेंट्रल उसका कुछ पार्ट स्टेट को भी देती है उसके फाइनेंसेस को डिक्रीज करने के लिए। सो व्हाट इज द रेवेन्यू डेफिसिट्स? यू हैव ऑलरेडी डन द टॉपिक। रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जितनी आपकी रेवेन्यू इनकम आ रही है और उसमें से रेवेन्यू का खर्चा हो रहा है। व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स? रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? कोई बात नहीं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, प्लीज रिकॉल द प्रीवियस टॉपिक्स simultaneously। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? which creates assets and which do not decrease the liabilities। जो आपकी इनकम भी जनरेट कर रही हैं और आपकी लाइबिलिटीज को भी कम कर रही हैं, जैसे कि टैक्स की इनकम जो आपकी लाइबिलिटीज को कम नहीं करें। डू नॉट जनरेट एसेट्स एंड डू नॉट डिक्रीज द लाइबिलिटीज, जबकि कैपिटल में इट क्रिएट्स एसेट्स एंड इट डिक्रीजेस द लाइबिलिटीज। वो डू, ये डोंट। तो ये वो वाली इनकम है जो आपकी कोई भी चीज बना नहीं रही है, इनकम आ रही है, इनकम जा रही है। गवर्नमेंट ने आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया टैक्स के रूप में, गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप की फॉर्म में आपको दे दिया, ना कोई एसेट क्रिएट हुई, ना कोई हमारा पोर्टफोलियो बना, ना कोई देश का पैसा आया, नथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं बना। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं? जिससे कोई ना कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है और आपकी लाइबिलिटीज खत्म हो रही है। पुराने लोन चुका देने से आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, आपकी एक लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो जिससे आपकी एसेट्स भी क्रिएट हो और लाइबिलिटीज भी होती है, वो कैपिटल है। और जिससे ना एसेट होती है ना ही लाइबिलिटी है, वो आपकी रेवेन्यू है। तो हम यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू डेफिसिट्स के बीच के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। सो टू मीट द फिस्कल नीड्स ऑफ द स्टेट, दो तरह की इनकम है हमारे पास, टैक्स इनकम एंड नॉन टैक्स इनकम। टैक्स इनकम के अंदर कौन सी आ रही है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड व्हाट आर द नॉन टैक्स इनकम्स? fees, fine, some gifts, grants, these are coming as a non-tax income. So both of the type of incomes considered as a state. अभी देखिए इसमें हम लोग फिर से बात करेंगे, कुछ तरह के टैक्सेस इनकम जनरेट कर रहे हैं, कुछ तरह के खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर है, कुछ रिवेन्यू जनरेशन है। वो जैसे सेंट्रल कर रही है ऐसे स्टेट भी कर रही है। इनकम टैक्स लगाया सेंट्रल ने, जीएसटी लगाया सेंट्रल ने, कुछ फीस, प्रॉपर्टी का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स इज अंडर स्टेट, कुछ तरह के टैक्सेस जो है वो सेंट्रल ने लगाए, ठीक है। और कुछ ग्रांट्स भी स्टेट ने दी, पेंशन हो गया सपोज, है ना, वो सेंट्रल ने दिया। कुछ पेंशन्स कौन दे रहा है? स्टेट दे रहा है। तभी हरियाणा में जो ओल्ड एज पेंशन है और जो पंजाब में है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर सेंट्रल में जॉब कर रहे हो और जॉब से मिलने वाली पेंशन जो है, सेंट्रल की जो जॉब है उसकी जो पेंशन है वो सेम है सब जगह पे, वही आपका डीए, वही आपका डिरेंस अलाउंसेस सेम मिलता है। सो इसीलिए हम आपसे बात करें कि कुछ चीजें जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेट की हैं, सेंट्रल की हैं, इसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेट की भी है। तो यहाँ पे इसको जैसे अपने आप को बैलेंस करना है, इसी तरह
सेंट्रल को बैलेंस करने के साथ साथ स्टेट को भी बैलेंस करना है। तो गवर्नमेंट आपको ये डिसाइड करवाती है दैट यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ताकि आप घाटे में नहीं होंगे। अगर घाटे में होंगे तो कहां, ये अगर यहाँ घाटे में होंगे तो क्या करेंगे, यू विल आस्क सेंटर। तो आप सेंटर को कहोगे ना पैसा दे दो, हमें एलोकेट करो फंड्स को, ये एलोकेशन ऑफ फंड्स है तो स्टेट के बीच में। तो एक स्टेट बेनिफिट क्रिएट कर रहा है, एक स्टेट लॉसेस क्रिएट कर रहा है, तो सेंट्रल को किसको पैसा देना पड़ेगा, जो लॉस क्रिएट वाली स्टेट है। तो वो इसीलिए आपको टारगेट दे देते हैं कि किसी भी स्टेट को ही लॉसेस नहीं लेके आने, क्योंकि अगर आप लॉसेस लेके आएंगे समवेयर समहाउ बर्डन हमारे ऊपर आएगा, तो हमें अपने फाइनेंस में से आपको देना पड़ेगा। एलोकेशन ऑफ फंड ही तो करना है और वो बर्डन हमारे ऊपर आ जाएगा, फाइनेंस कमीशन के ऊपर आएगा। इसलिए वो ये टारगेट जो है सेंट्रल जो है वो स्टेट को भी देती है कि आपको अपने रेवेन्यू डेफिसिट्स मिनिमल टू मिनिमल करके आने हैं। अब तो दिस इज ऑल अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी मिनिमल। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बीच का अंतर। नाउ दे सेड दैट गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए 3 ट्रिलियन करोड़ रुपया जो है इसके लिए रखा हुआ है कि डेफिसिट्स हो जाते हैं तो दे विल कम टू अस फॉर द ग्रांट्स, तो वो ग्रांट के लिए हमारे पास आएंगे, तो हमें ये जो है रेवेन्यू डेफिसिट्स के बीच के जो गैप्स हैं उसको फिल करने के लिए 3 ट्रिलियन करोड़ रुपीस हैज बीन असाइन्ड फॉर द 5 इयर्स। ये 5 साल के फंड के लिए रखा गया। अब इसमें उसने क्या कहा, दे सेड दैट द नंबर ऑफ स्टेट्स क्वालिफाइंग फॉर द ग्रांट, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। अब ये ग्रांट, इसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, ये कहां, इनका नहीं, इनके बीच का डिफरेंस कहां से आएगा, ग्रांट मिलेगी सेंट्रल से। ये ग्रांट जो है इसको क्या बोलना, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। आपके रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में गैप आ गया, वो कौन सा है, लॉसेस आ गए। लॉसेस आपने कहां से पूरे किए, ग्रांट लिया, ग्रांट का नाम क्या दे दिया, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। अब जब सेंट्रल को मालूम है कि सारे स्टेट जो हैं, ऑलमोस्ट हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर, कोई ना कोई स्टेट जो है लॉस क्रिएट करके रखेगा, तो उन्होंने क्या किया, एक तो 3 ट्रिलियन करोड़ रुपया इस लॉस के लिए इकट्ठा करके रख लिया कि 5 साल में मैंने ये लॉसेस में से लोगों को पैसा, स्टेट्स को पैसा देना ही है। अभी उन्होंने कहा, क्या कहा कि हर, जैसे उन्होंने टारगेट्स दिए ना कि आप में से कोई भी जो है लॉस मेकिंग स्टेट नहीं बनेगा, तो in the meantime period 17 states have been qualifying from this revenue deficits grant and that has to been decreased to the 6। उन्होंने टारगेट क्या किया है कि अभी 17 स्टेट्स हैं जो रेवेन्यू डेफिसिट की ग्रांट हमसे ले रहे हैं, हम इसके ग्रांट ऐसे स्टेट्स को रिड्यूस करके नंबर 6 में लाना चाहते हैं। 17 स्टेट्स जो हैं वो रेवेन्यू डेफिसिट्स की ग्रांट्स ले रहे हैं एंड वी वांट बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंस कमीशन ये जो स्टेट्स हैं वो 6 रह जाएं, लॉस मेकिंग स्टेट्स हैं, रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट्स हैं। सो अभी मीनवाइल इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस प्लान 21-22 में जब ये शुरू हुआ तब हमारे पास 17 स्टेट्स थे जो रिलीफ फंड की ग्रांट को ले रहे थे और हम इसको चाह के डिक्रीज करके 6 स्टेट्स पे लेके आना चाहते, बिकॉज these states are very much poor and they are not able to come up with the deficits। तो उसको तो हमें मालूम है कि क्रॉस फिंगर्स 2-3 लोग तो they will not able to clear, तो वो वाला 6 people are those which is not supposed to be clear their revenue deficits। हम 17 में से बाकी सबको पास करा देंगे, सबका रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो कम कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। पहला, वर्टिकल पैसे देना कितना है, टोटल 42% आपको हम देंगे और रेस्ट ऑफ 58% हम सेंट्रल अपने पास रखेगी, क्योंकि सेंटर की भी तो पॉलिसीज है ना, सेंटर ने भी तो खर्चा करना है बजट में। तो 42 हम किसको देंगे, स्टेट्स को देंगे। फिर स्टेट्स को देने का क्राइटेरिया क्या है, ये इसके भी हाफ पर देंगे। फिर अगर उनके रिवेन्यू और इनकम और खर्चे एक्सपेंडिचर में डिफरेंस रह जाता है तो उनको ग्रांट्स मिलेंगी। ग्रांट्स को क्या कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। वो किसके बेसिस पे मिलती है कि आपकी स्टेट कितना डेफिसिट क्रिएट कर रही है। हम चाहते हैं इस टारगेट को लेस डाउन करना। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस अंडर दिस थिंग। नाउ आफ्टरवर्ड्स दे सेड दैट आप ऐसा कर लीजिए, इसको थर्ड पॉइंट बना लो, मैं इसी को यहीं पर लिख देती हूं। ये सेकंड था ना, ग्रांट इन एट, ठीक है। अब जब ग्रांट दी जाती थी, इफ यू रिमेंबर, 2 तरह से दी जाती थी। कम ऑन, रेगुलर था आई थिंक इसका वर्ड,
सेकेंड वन से फर्स्ट वन वॉज बेसिक, हाँ नॉर्मल रेगुलर ग्रांट है ना, बेसिक लिख लीजिए इफ यू वांट। ये जो ग्रांट है दो तरह से दी जाती है, एक तो आपको रेगुलर ग्रांट तो देनी है, हर साल कुछ ना कुछ खर्चा आपको पता है इनका नुकसान होने ही वाला है, बेसिक ग्रांट, नॉर्मल ग्रांट, सेकेंड इज अ परफॉर्मेंस ग्रांट। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो आपको ज्यादा पैसे देंगे आपके स्टेट को बढ़ाने के लिए, और अगर नहीं तो जो पहले वाली ग्रांट है ना वो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेफिसिट ग्रांट है, घटा होने की वजह से आपको ग्रांट मिल रही है। सेकेंड इज योर परफॉर्मेंस ग्रांट, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो एज अ फॉर गुड थिंग बीइंग एज अ शाबाश आपको कुछ मिला जाएगा, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ग्रांट। एंड परफॉर्मेंस ग्रांट के भी आगे 4 आइटम्स हैं, किसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा? Four items to be considered under the performance grant. The first one is the social sector. सोशल सेक्टर के अंदर आता है हमारा एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारी चीजें जिससे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है कि आपकी स्टेट सोशल डेवलपमेंट अच्छा करेगी तो आपको ज्यादा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आप नुकसान कम कर रहे हो, स्टेट का वेलफेयर कर रहे हो, स्टेट का वेलफेयर कर रहे हो तो वेलफेयर के लिए सेंट्रल को आपको पैसा देना पड़ेगा। सेकेंड इज अ रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी की डेवलपमेंट, रूरल इकोनॉमी बेसिकली किस पे फोकस होती है? एग्रीकल्चर पे, है ना। रूरल इकोनॉमी किस पे फोकस्ड है? एग्रीकल्चर पे। उन्होंने कहा अगर आपकी इकोनॉमी एग्री बेस्ड सेक्टर है, ज्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड है, आपकी सेक्टर मेन जो है, जैसे अभी हम महाराष्ट्र की बात करें और यूपी की बात करें तो यू कैन अंडरस्टैंड विच इज कंपैरेटिवली मोर एग्रो prone to the production, that is a UP, Haryana, Punjab, rather than any Gujarat and some other states. So आपका रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके बेस पर डिपेंड करता है कि आपका टोटल जीडीपी में कितना हिस्सा एग्रीकल्चर से आ रहा है और आपकी बेसिक ऑक्यूपेशन कहां से आ रही है। तो दे सेड दैट किसी भी इकोनॉमी की, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, इकोनॉमी का मतलब चाहे आप देश समझ लीजिए, इकोनॉमी का मतलब चाहे आप स्टेट समझ लीजिए, किसी भी इकोनॉमी, किसी भी स्टेट का रूरल डेवलपमेंट इस चीज पे डिसाइड होता है कि वहां की पहली बात कितने % पॉपुलेशन उसमें इंडल्ज है, ठीक है। सेकंड बात वही वर्कफोर्स हो गया, ठीक है, कितनी वर्कफोर्स उसमें इंडल्ज है। सेकंड आप टोटल नेशनल इनकम में, आउटपुट में कितना हिस्सा दे रहे हो, इनकम जनरेट कितने लोग कर रहे हैं और वो जो इनकम जनरेट है वो कितनी हो रही है एग्रीकल्चर से। ये 2 कंपोनेंट आपको डिसाइड करके बताते हैं कि आप रूरल बेस्ड इकोनॉमी हो या अर्बन बेस्ड इकोनॉमी हो। तो हमने कहा रूरल बेस्ड इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो नेशनल इनकम में, एसडीपी में, जीडीपी में, किसी में भी आपका शेयर कितना है। अगर एग्रीकल्चर का शेयर ज्यादा है इसका मतलब आप रूरल इकोनॉमी हो। आपकी जो वर्कफोर्स है वो कितनी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। Workforce employment towards to the agriculture sector, that also depends that you are a rural economy or not. अब परफॉर्मेंस का मतलब आपके पहले सोशल सेक्टर को देखा जाएगा कि क्या आपकी स्टेट में परसेंटेज ऑफ लिटरेसी बढ़ गया, एजुकेशन को देख के, हेल्थ डेथ रेट कम हो गई है ना, आपने बड़ी मेन प्रॉब्लम से क्योर करना शुरू कर दिया अपने स्टेट को, तो आप अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, आपको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। आपके यहाँ पे नए पीजीआईज, एम्स खोलने के लिए गवर्नमेंट आपको फाइनेंस करेगी। अगर आपकी रूरल इकोनॉमी कंपैरेटिवली कम होती जा रही है, वर्कफोर्स 70% आपकी एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, अब आप धीरे धीरे उस पर बर्डन खत्म करके अर्बनाइजेशन कर रहे हो, आप इंडस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हो, इसका मतलब यू आर परफॉर्मिंग वेल। आप एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज में भी अगर आते हो तो भी आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। तो अगर वर्कफोर्स कम हो रही है या नेशनल इनकम में इसका शेयर कम हो रहा है तो वी आर कंसीडरिंग एज अ डेवलपमेंट स्टेट, तो आपको फिर और पैसा दिया जाएगा कि और इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट किया जाए। थर्ड वन इज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज कह लीजिए, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। आपकी स्टेट में
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज कैसी हैं, गवर्नेंस कैसी है, इट मींस आप वो जो हमने उसमें बात किए थे, आपकी जुडिशरी कैसी है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने हैं, कितने अदालतें हैं, लोग कितना उस पर फाइल कर रहे हैं केसेस, एज वेल एज हमारे स्टेटिस्टिक डेटा कितना कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव है ना डेटा कलेक्शन में। तो ये वही वाला पॉइंट आ गया कि आपकी गवर्नेंस कैसी है, जुडिशरी कैसी है, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस क्या है। इसके अंदर दो ही लिख लो, एक तो जुडिशरी लिख लो, एक स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस लिख लो। स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस कितना कर रहे हैं आपके स्टेट, और आपका जुडिशरी पावर कैसी है। अगर ये स्ट्रांग है तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस है, आपके ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए आपको पैसा मिलेगा स्टेट सेंटर की तरफ से। एंड द लास्ट वन इज द पावर सेक्टर। पावर सेक्टर, नो डाउट दे सेड दैट पावर सेक्टर को गवर्नमेंट ग्रांट के अकॉर्डिंग नहीं लिंक करती, लेकिन मतलब ग्रांट नहीं देती है पावर सेक्टर के लिए, बट स्टिल इट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर विच अ स्टेट कैन बोरो फाइनेंस फ्रॉम द सेंटर। ये ग्रांट के अंदर नहीं आता है, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद क्या करोगे? परफॉर्मेंस स्टेबल हो जाओगे, कांस्टेंट हो जाओगे। बट हाउ टू परफॉर्म मींस टू से आप स्टिल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस मांग सकते हो सेंट्रल की तरफ से। तो दीज आर द 4 बेसिक थिंग्स ऑन द बिहाफ ऑफ व्हिच योर परफॉर्मेंस हैज बीन चेक्ड, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस परफॉर्मेंस द ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंटर। तो ये हमारा 15 फाइनेंस कमीशन में ये मनी को एलोकेट, मतलब मनी वी हैव इन बिटवीन द डेटा, बट दे आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट दिस। ठीक है जी, शैल आई मूव? अभी ये 3 पॉइंट्स वही वाले हैं जो हमने पहले बात कर दी। अभी 4th 5th पॉइंट 2-3 हैं जो थोड़े नए हैं। Fourth one is grant to local government. Grant to local government. For incubation of new cities. New cities and something regarding a health grant, new cities के लिए और health grant के लिए at local bodies। ये जो है local government को मिलेगा, वो state दे रही थी ना, ये local government को बांटे जाएंगे। ठीक है, सो अभी उसने सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, एक तो न्यू सिटीज के इंक्यूबेशन के लिए और एक हेल्थ ग्रांट के लिए। इन दोनों के लिए ग्रांट मिलेगी। अभी ये बात कहां किया है, कौन किसको दे रहा है? स्टेट आगे डिवाइड कर रहा है ना, पहले स्टेट को मिला, अब स्टेट आगे बांट रहा है। स्टेट किसको बांट रहा है? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट आगे फर्दर वैसे डिवाइड होती है, एक तो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस में और एक होती है पंचायत में। तो ये अभी हम इसके अकॉर्डिंग बांटेंगे। तो हमने कहा कि ऑब्वियसली न्यू सिटीज विल बी गॉन फॉर द म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, हेल्थ ग्रांट शुड बी गिवन टू द बोथ ऑफ द पीपल, चाहे वो पंचायत हो जाए चाहे वो हमारा म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हो जाए। तो अब उन्होंने कहा कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? न्यू सिटीज का डेवलपमेंट करना, क्योंकि अगर न्यू सिटीज डेवलप होंगे तो अर्बनाइजेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर सारा डेवलप हो जाएगा। So that's why we need to have more investment towards your local governments. So उन्होंने अब सिटीज के बिहाफ पर पैसा डिवाइड किया। They said that first of all we need to create a cities whose population is to less than 1 million. तो अब ये cities development जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, less than 1 million of the population,
जिस भी जगह की, जिस सिटी को डेवलप करना है उसकी पॉपुलेशन जो है अगर 1 मिलियन से कम की है, वो न्यू सिटीज को डेवलप कर रहे हैं. अर्बन लोकल बॉडीज basic grants are for the cities and towns the population having less than 1 billion, and the million plus cities are 100% grants are being performed linked through the million plus cities to improve the urban. And एक तो हो गया less than 1 million and फिर above. above 1 million population. दोनों के बिहाफ पे you will get the money and they said that अगर आप 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाले हैं तो 100% ग्रांट जो मिली जाएगी दे दी जाएगी इसकी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप बड़ी सिटी डेवलप कर रहे हो. अगर छोटी सिटी है तो उसके लिए आपको फिर फाइनेंस के लिए यू नीड टू आस्क स्मॉल टाउन डेवलपमेंट के लिए एंड इसमें एक बिग सिटी डेवलपमेंट के लिए. और ये डेवलपमेंट में क्या क्या करना है, यू नो दैट. क्या क्या करेंगे इसमें, वही सब चीजें, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, हाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वही इसके फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, इसको रिड्यूस करना, पॉपुलेशन कंट्रोल करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना. इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी का ही पार्ट आता है. वेस्ट मैनेजमेंट करना, ये सारी चीजें ये सिटीज के डेवलपमेंट का रोल प्ले करते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स आ गई एंड ऑल आ गया. तो ये सारी चीजों को डेवलप करने के लिए, इफ यू रिमेंबर इन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड विद दिस थिंग, जिसमें स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए सेंट्रल ने फाइनेंस किया था. कैन यू काउंट अप एनी फ्यू नेम ऑफ स्मार्ट सिटीज? आप ओके, somebody is saying हिमाचल, नहीं बोला? शिमला, धर्मशाला, गुड़गांव, पंचकुला, चंडीगढ़. पहले स्मार्ट है. What is the characteristics and features of smart city? No doubt I have given you the few names. Smart city, anybody from Himachal, they must be knowing about Dharamshala and Shimla. What are the basic things are being given to them to create a smart city? Basic infrastructure means? नहीं. ओके, इसको रीड कीजिएगा जरा, बिकॉज इट्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा एक बार पढ़ के आएगा, क्योंकि इट इज वेरी कॉमन नाउ डेज एंड वी हैव सिलेक्टेड मेनी ऑफ द सिटीज आउट ऑफ द टोटल इंडिया. सो that should be a homework. I have already given you 2 homeworks to be there. Added one more thing, the number of smart cities being introduced in India and the number of, at least the name should be there in with your list, and whatever the basic characteristics on the behalf of which they have selected. अब पूरे इंडिया में से सिर्फ धर्मशाला को, मतलब हिमाचल में सिर्फ धर्मशाला को क्यों उठा लिया, सिर्फ शिमला को क्यों उठाया जिसको स्मार्ट सिटी बनाना है? तो उसके पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और अगर स्मार्ट सिटी बनानी होती है तो उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या चीजें उनको दी जाती हैं. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम पीरियड पे क्या है? क्या रोड्स होना जाना इज कनेक्टिविटी इज द ओनली थिंग टू बी एज अ योर स्मार्ट सिटी? Haryana is 100% electrification. Haryana is already 100% of this connectivity, road to road. Is it still being all the state or district is being a smart city? No. What else to be the part of the smart city characteristics? Must go for it. इस क्लास में जाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा. So ये हमारा थर्ड जो है, बेसिकली फाइनेंस किस लिए मिल रहा है? इंक्यूबेशन ऑफ न्यू सिटीज. नई सिटीज का एक नया कुछ प्रोग्राम बनाने के लिए आप इनको 2 बेसिस पे बांटते हो, उसके लिए पैसा गवर्नमेंट से मांगते हो. डन. फर्दर दे सेड दैट वी हैव फिस्कल स्पेस फॉर सेंटर. Fiscal space for center. 15th Finance Commission transferred the devolution grant about 34% to be estimated for the
revenue receipts to the union leaving an adequate fiscal space for the nation to the priority. अब 34% उन्होंने अपने टोटल फिस्कल का स्टेट को देना है, बाकी सारा फिस्कल और रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस है. प्लीज कीप इन माइंड. मैंने आपको पहले एग्जांपल बता दिया, फिस्कल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स अलग अलग होते हैं. तो उन्होंने कहा अपने फिस्कल रिसिप्ट्स के लिए वो 34% जो है सेंट्रल स्टेट्स को देते हैं, बाकी वो अपने पैसे अपने पास खर्चने के लिए रखते हैं. तो दैट इज टू बी पार्ट ऑफ द 34% of the fiscal receipts. So government revenue receipts of the union is leaving to the rest of. Done. Now few important things under this. ये 5 पॉइंट ही हैं जो मेन डिस्कस करने, क्योंकि हमने वैसे 3 पॉइंट्स ही डिस्कस किए थे, लेकिन वी हैव एक्सटेंडेड अ फ्यू मोर पॉइंट्स. नाउ सम अदर पॉइंट्स व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स विद डेटा कि हाँ जी क्या अभी मतलब आई विल नॉट गिव यू द प्रॉपर डेटा बट स्पेसिफिकली टुवर्ड्स व्हाट इज टू बी डन इन दिस. तो अभी इस फाइनेंस कमीशन में जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पहले नहीं थे कहीं, क्या है? जीएसटी पहले नहीं था तो 15 फाइनेंस कमीशन में आया. अब देखिए ना, वंस द बिकॉज मतलब मेन हम लिख ही लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके ऊपर है? ऑन जीएसटी ने ऑल स्टोरी हैज बीन चेंज्ड. व्हाई? अर्लियर द टोटल इनकम ऑन द टैक्स इनकम व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स सेंट्रल एंड स्टेट, कुछ पार्ट स्टेट लेता था, कुछ पार्ट सेंट्रल लेता था. अभी क्या हो गया? सारा सेंट्रल ले रहा है. तो सेंट्रल के पास फाइनेंसेस बढ़ गए और स्टेट के पास फाइनेंसेस कम हो गए. तो अब हमने जो पैसा खर्चना है, सेंट्रल ने जो खर्चना है, सेंट्रल ने अपने इसी के अकॉर्डिंग खर्चना है कि जो मुझे पैसा मिल रहा है फ्रॉम द ऑल, बट आई हैव टू गिव अ बिट ऑफ द पार्ट टू द स्टेट. एक बड़ी स्टेट ने ज्यादा जीएसटी निकाल के दिया और एक छोटी स्टेट ने थोड़ा सा जीएसटी दिया. पैसे लेने के टाइम तो मे बी एवरीबडी कम्स टू बी इक्वल पार्ट, है ना. हो सकता है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो लेकिन उसकी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर बेस हो, तो उसने जीएसटी नहीं निकाल के दिया. ये पूरी इंडस्ट्रियल स्टेट थी, उन्होंने सबसे ज्यादा जीएसटी निकाल के दिया, चाहे छोटी स्टेट हो. तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो प्रोस्पेक्टिव था ना वो बदल गया. अब सेंट्रल को दोबारा से रीफाइनेंस करना पड़ता है कि टोटल जो मनी जनरेट हुई है, एलोकेट हुई है, उसको कैसे डिवाइड किया जाए बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट. तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो पहले जो था कुछ पार्ट स्टेट अपने आप कलेक्ट करती थी तो अपना खर्चा भी निकाल लेती थी, इसलिए उनको सारी ग्रांट्स के लिए सेंट्रल के पास नहीं जाना पड़ता था. लेकिन जीएसटी का एक क्योंकि एक वो अपनी एक बॉडी क्रिएट हो गई है जो खुद के लिए फाइनेंस जनरेट करती है, इंडिविजुअल बॉडी है टुवर्ड्स टू योर फाइनेंस कमीशन. दोनों अलग अलग बॉडीज हैं, तो वो अब दोनों को आपस में मैच करना पड़ता है कि आप कितना पैसा जनरेट करके लाए हैं, हमें बताएं ताकि हम उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे. So that's why earlier Finance Commission was collecting taxes and they were generating refunds for you and grants to you people. Now GST is individual body, he is collecting the data for the taxes and Finance Commission will ask them how much money you have created, now I have to divide it to you people. So that's why the GST has created a very different story towards the 15 Finance Commission. सबसे important चीज क्या है? तो GST accounts for 35%, write down, GST accounts 35% of gross state domestic product, gross state tax revenue. %35 of gross state tax revenue of union. And GST accounts for around 44% of on tax revenue of the state. ये ग्रॉस स्टेट है, ठीक है. अभी वो क्या कह रहे हैं, जीएसटी ने अब क्या, ऑब्वियसली जब जीएसटी लगेगा टोटल मनी लगेगी तो 35% ऑफ ग्रॉस स्टेट टैक्स रिवेन्यू ऑफ यूनियन. एक तो पहला ये टोटल फंड कहां से आएगा, 35% आएगा यूनियन की तरफ से, 44% ऑफ टैक्स रिवेन्यू ऑफ द स्टेट्स की तरफ से. तो वो टोटल फाइनेंस को पहले से डिवाइड किया गया कि फ्रॉम वेयर वी विल जनरेट द इनकम. क्योंकि सिंपल सी बात है ना, सेंट्रल पैसा कहां से ला रही है,
अगर वो अगर वो जीएसटी भी लगा रही है, जीएसटी कहां से आ रहा है? स्टेट से ही तो आ रहा है, तो स्टेट से ही तो इकट्ठा किया हुआ पैसा है और उसको स्टेट पे ही बांटना है. सो दैट दे हैव टू डिसाइडेड हाउ मच मनी टू बी कमिंग फ्रॉम द स्टेट एंड हाउ मच वी हैव टू डिवाइड इट टू द स्टेट्स. फर्दर इज ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू. ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सिर्फ जीएसटी नहीं लगता, और भी टैक्स लगते हैं. जो अदर तरह के टैक्सेस लग रहे हैं, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू. देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 1.7 पॉइंट्स ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आफ्टर एक्सक्लूडिंग जीएसटी सेस. उसके जीएसटी लगने के बाद से हमारी जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है 1.7% कम हो गई है, बिकॉज पीपल आर पेइंग मोर ऑफ जीएसटी रेदर देन जनरेटिंग अ इनकम. क्योंकि वहीं से उनकी इनकम टैक्स लेनी थी, वो पहले जीएसटी दे चुके हैं. सो दे आर नॉट पेइंग टू काइंड ऑफ टैक्सेस, दे आर पेइंग वन काइंड ऑफ टैक्स. सो हमारी जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो 1.7% कम हुई है. डिक्रीजेस. डन. There is drop in 1.7% gross tax revenue after excluding GST. GST जो लग रहा है वो लग रहा है, लेकिन जो अदर टैक्स इनकम मिलनी थी वो 1.7% कम हो गई है इंडिया के टैक्स कलेक्शन में, टोटल इनकम जनरेशन में. जीएसटी टैक्स रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू बी 135. एक दो पॉइंट और हैं बस. 135.2 करोड़ एक्सपेक्टेड है कि हम इकट्ठा कर लेंगे जीएसटी से. We are expecting that we will collect between the 5 year, पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं हम. ये पूरे फाइनेंस कमीशन 5 इयर्स तक की बात कर रहे हैं कि पूरे 5 साल में हम 135.2 लाख करोड़ जीएसटी से कलेक्ट करेंगे, जबकि आउट ऑफ विच डिवाइडेड पूल इज 103 लाख करोड़. डिवाइडेड पूल का मतलब जो बटा हुआ है बराबर, वो टोटल कहां से आ रहा है? हमसे तो आ रहा है ना. तो वो टोटल 135 लाख करोड़ हम इकट्ठा करेंगे. जो जो बटा हुआ हिस्सा है टोटल का, सेंट्रल स्टेट दोनों का है, जो वो कौन सा हो गया? 103 लाख करोड़. बाकी जो होगा जीएसटी का हिस्सा जो स्टेट लगा रही है, कुछ चीजों पे भी स्टेट लगा रही है ना पैसा, टैक्स. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कौन सा हो जाएगा? जो स्टेट अकेली अपना अपना निकाल रही है. मिलाकर 135 है और जो डिवाइडेड पूल है वो 103 है. तो इनके बीच का डिफरेंस कौन सा होगा? जो स्टेट का इंडिविजुअल खुद का जीएसटी होगा, जो खुद स्टेट अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए लगाएगी. सो अभी ये चीज हो गई हमारी टैक्स रेवेन्यू. फर्दर दे सेड दैट अभी इसी चीज में जो है, अभी देखो पहले क्या हुआ, सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड हुआ, ये भी सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड हुआ, ये जीएसटी वाला डिवाइड हुआ, ये भी जीएसटी डिवाइडेड है. अभी थर्ड कौन रह गया? लोकल बॉडीज. लोकल बॉडीज के बीच में जो पैसा डिवाइड होगा ऑन द बिहाफ ऑफ टैक्स डिवाइडिंग ऑन द लोकल बॉडीज के ऊपर. $436,361, that is crore of total grant between this year. जैसे उन्होंने इनकम सोची ना इतनी मिलेगी, इतना हमने टोटल ग्रांट पैसा डिवाइड करना है. ग्रांट का मतलब वो सारी लोकल बॉडीज को मिला के, स्टेट स्टूट को मिला के जो पैसा हमने देना है. सो दिस इज द टोटल ग्रांट वी आर एक्सपेक्टिंग टू गिव टू द सेंट्रल फ्रॉम टू द स्टेट एंड स्टेट फॉर द लोकल बॉडीज. अभी देखो लोकल बॉडीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत को. तो फर्दर उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 450 करोड़ इज डिवाइडेड बिटवीन द म्युनिसिपैलिटी शेयर्स. 450, इसमें से 450 करोड़ रुपया म्युनिसिपैलिटी बॉडीज को, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस के लिए, सोसाइटीज के लिए डिवाइड कर दिया. इसका 450 करोड़ रुपीस म्युनिसिपैलिटी बॉडीज को दिया. अभी यही वाला पैसे में से कुछ चीजें एजुकेशन के लिए खर्ची गई हैं, कुछ हेल्थ के लिए खर्ची गई, कुछ एजुकेशन के लिए खर्ची गई हैं. हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एक तो आयुष, व्हाट इज आयुष?
Sorry? 5 lakh rupees of insurance by anyone? Not anyone. and permanent disability. जिसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो वो ले सकता है इसको? आयुष कार्ड सुना? Health card. हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मैंने अपने आप से लगाया कि नहीं मुझे नहीं मालूम। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड सुना है? नहीं सुना? The poor people can avail the facility of health services for the 5 lakh rupee if they got any kind of medical exigencies is there, isn't it? तो वो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? यहीं से तो ग्रांट से तो मिलेंगी। वो किसको मिल रही है? सेंट्रल ने दी स्टेट को। स्टेट को किस बिहाफ पे दी? परफॉर्मेंस के बेसिस पे। क्या आप अपनी हेल्थ अच्छी कर रहे हो स्टेट की? स्टेट आगे किसको बांट रही है? आयुष्मान के थ्रू लोकल एंड म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत में बांट रही है। तो दे सेड दैट इसमें क्या स्पेसिफिक लिखा? टू for this we have Ayush to be encouraged to the elective subject as well. Ayushman is no doubt, हम यहाँ पे आयुष्मान कार्ड की बात तो कर ही रहे हैं, उसके लिए एक्सपेंडिचर हेल्थ के लिए बेनिफिट्स तो दे ही रहे हैं, साथ में उस हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं आयुष के अंडर, जो हमारी आयुष्मान के अंदर जो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आती है, उसको भी अपग्रेड करने के लिए पैसा दिया जा रहा है कि ना सिर्फ आपको सिर्फ हेल्थ के लिए बीमार हो जाओ तो पैसे दे देंगे, आप बीमार हो ही क्यों, उसके लिए इनकरेज करने के लिए भी गवर्नमेंट उसको एज अ कैरिकुलम का पार्ट बना रही है कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज के रिगार्डिंग आपकी एजुकेशन का पार्ट बन जाए, ताकि, और वो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इसको इंपॉर्टेंट काम दिया गया है। That's it. On defense, they said that non-lapsable pool of defense and the security. हम इसमें गवर्नमेंट कहती है कि क्योंकि स्टेट तो कुछ नहीं कर सकती, ऑलमोस्ट यू हैव टू रन बाय द सेंट्रल ओनली. सो सेंट्रल हैज केप्ट द थिंग्स इन हिज ऑन हैंड, बट दे हैव गिवन द पूल टू दिस थिंग. एज आई आस्क्ड यू, मेनी ऑफ द पीपल इन द क्लास यूजुअली इंडियन, आई आस्क्ड यू पीपल एज वेल, इंडिया की करेंसी क्या करती है जी? चलो चलते हैं, सब लेके आते हैं कि मुंबई, नासिक, इंडियन करेंसी कहाँ इशू होती है, छपती कहाँ है? वी आर सिटीजन्स, कम ऑन, वी मस्ट बी नोइंग एटलीस्ट हमारी करेंसी कहाँ छप रही है, इजंट इट? इंडिया के सबसे बड़े बड़े जो डिफेंस की सीक्रेट्स हैं, हमारे पास कोई मिसाइल्स हैं? Can you name any missile? अग्नि, ब्रह्मोस, कहाँ पड़ी है? पड़ी कहाँ रखी, कहाँ हुई है? पड़ी मतलब स्टडी कहाँ पड़ी उन्होंने की है, कहाँ रखी हुई है? Let's use very specific Hindi. DRDO के पीछे इतना बड़ा खाना वो खोला हुआ है अपना वेयर हाउस, हैदराबाद, बैंगलोर, बस 6-7 सारी स्टेट्स कंट्रीज के नाम बुलाओ, वो ये तो हो गई. दैट इज द सेकेंडली इज टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर. economic factors can be the reason, political economic factor can be reason. Like सबसे पहली बात क्या है, we have to create a balance. And क्या है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्दर आगे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, पंचायत गवर्नमेंट, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, इन सब के अंदर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होना. हमेशा से पंजाब यूज्ड टू से we are always get not equal finances which is given to the other states. That's where we have a lack of finance, and the lack of finance is the reason of underdevelopment growth of the state. हमें फाइनेंस नहीं मिल पाता सेंट्रल से. ऐसे बिहार कहता है कि हमें हमेशा फाइनेंस मिलता है क्योंकि वो अंडर डेवलप स्टेट है, तो लेकिन डेवलपमेंट तो अभी भी नहीं हुई. तो ये
रीजन क्या कहा जाते हैं कि हमारी पार्टी कोई और है, सेंटर में कोई और पार्टी है, स्टेट में कोई और पार्टी है, तो सेंट्रल उस स्टेट को पैसा नहीं देगी फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उस स्टेट का डेवलपमेंट हो, क्योंकि उस स्टेट का डेवलपमेंट दूसरी पार्टी ने कर दिया तो ऑब्वियसली वो वही पार्टी रूल करेगी, तो हम उनको फाइनेंस नहीं देंगे. इट इज बीइंग सेड बट इट इज नॉट एक्चुअली. दे हैव टू गिव द, हमें पता लग गया, अब हमने बहुत बार पढ़ लिया कि इट इज बीइंग डन ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राइटेरिया. जो जितना काम कर रहा है उसको उसके बिहाफ पे पैसा देना ही पड़ता है. इट इज नॉट इन माई विश. आई एम फ्रॉम द बीजेपी गवर्नमेंट एंड यू आर फ्रॉम द आप गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट, सो आई विल नॉट प्रोवाइड यू फाइनेंस. इट इज नॉट लाइक दैट. इट्स बीइंग डन. सो दैट्स व्हाई दे सेड दैट कि जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो आपकी फर्दर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का रीजन बन जाती है, जिसकी वजह से आप, ये भी तो हो सकता है ना कि आप, हम दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, यू आर इन स्टेट, आई एम इन सेंटर, मैंने आपको फाइनेंस दे भी दिया बट यू डोंट वांट टू स्प्रेड इट ओवर देयर बिकॉज लोगों को पता है तो सेंट्रल ने स्कीम्स लाई थी, आपने क्या किया. सो दैट्स व्हाई समटाइम्स दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन क्रिएट टू द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी. वो फाइनेंस को इक्वलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूट करके कि बेनिफिट नहीं देके डालते. फॉर द implementational challenges. पॉलिसी बना भी दी जाती है, फाइनेंस भी कर दी जाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, डिले हो जाता है, कंट्रोल्ड हो जाती है, मिसमैनेजमेंट हो जाती है, एक्चुअल बेनिफिट टू द रिसीवर नहीं पहुंच पाती. दैट कैन बी द रीजन. सो नॉन कॉम्प्लायंसेस, नॉट एग्जीक्यूशन, ये सारे रीजन हो जाते हैं जिस वजह से मेन फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारे को चैलेंज का फेस करना पड़ता है. लास्ट वन इज इवैल्यूएशन डिफिकल्टीज. Evaluation difficulties, they said that ultimately whatever is given to you, it's somewhere somehow related to the first one, है ना. हमने आपको फाइनेंस भी कर दिया, अब उस फाइनेंस की परफॉर्मेंस चेक करनी है ना, वो परफॉर्मेंस को हम इवैल्यूएट ही नहीं कर पा रहे. स्टेट इज प्रोवाइडिंग सम अनदर डेटा, सेंटर इज हैविंग अनदर डेटा. तो हमारे डेटा, हमने पॉलिसी चलाई थी, हमने उस सेंटर ने पॉलिसी चलाई, वन चाइल्ड वाली कोई पॉलिसी चलाई सपोज, तो उसका बेनिफिट चेकआउट करने के लिए वी विल आस्क स्टेट टू चेक आउट द डेटा. State will provide some other data. If a central government agency is taking a data, they are creating some other data. तो उसके बीच में evaluation का फ्लॉ रह जाता है, तो हमें पता नहीं चल पाता कि क्या हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आई है, अगली बार उसको पैसा देना है कि नहीं देना. तो evaluation नहीं कर पाते हम रिजल्ट्स के बेसिस पे. So this is all about the thing, but I need to give you one more thing. चलो मैं आपको वो इश्यूज है. एक हमने 15th फाइनेंस कमीशन में ना, जब चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन, इसमें ना नॉर्थ साउथ को लेकर डिबेट स्टार्ट हुआ है. नॉर्थ साउथ डिबेट मीन्स टू से द स्टेट्स इन द नॉर्थ एंड देन टू द साउथ, स्टेट साउथ, स्टेट नॉर्थ, उनके बीच में एक डिबेट क्रिएट हुआ. फाइनेंस कमीशन टुवर्ड्स डिबेट टुवर्ड्स इन साउथ एंड नॉर्थ इनटू द 15th फाइनेंस कमीशन. एंड दे सेड दैट दिस, वो 2020 में स्टार्ट हो गया था वैसे, इट्स गोइंग ऑन एट ट्रैक. उसमें वो क्या कहते हैं कि कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स जिनको फाइनेंस जितना वो जनरेट करते हैं उतना रिटर्न नहीं मिलता. जैसे कि वी हैव टू बेसिक एग्जांपल्स, यू कैन राइट डाउन. बेसिकली हम इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, द स्टेट्स, नॉर्दर्न स्टेट्स एंड द साउथर्न स्टेट्स आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल बेनिफिट व्हाट दे आर पेइंग टू देम. जितना वो पेमेंट दे रहे हैं ना स्टेट को, सेंटर को दे रहे हैं का मतलब मालूम है ना, बट दे आर पेइंग, दे आर गिविंग अस सम टैक्स रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम देयर state to the center, and what they are getting back, whatever the finance and grants, चाहे वो performance grant है चाहे basic grant है, जो उनको मिल रही है, उनके बीच में गैप रह रहा है. क्या? One is महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा and तमिलनाडु. महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु receives less than ₹30, लेस देन ₹30, ब्रैकेट्स में लिखिए, ₹30 के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, लिखिए टैक्स, डेवलपमेंट एंड अदर ट्रांसफर्स. टैक्स रेवेन्यू या टैक्स डेवलपमेंट एंड अदर ट्रांसफर्स, ब्रैकेट क्लोज, फॉर एवरी ₹100, फॉर एवरी ₹100, for every ₹100 they contributed to central government.
for every ₹100 they contributed to central government. इसका मतलब देख लीजिए, for the 100 they contributed to the central government. वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर 100 रुपया टैक्स से कलेक्ट करके देते हैं तो उसके रिटर्न में उनको 30 रुपये से भी कम मिल रहे हैं. ये स्टेट सब इनकम हायर इनकम वाले स्टेट्स है ना, तो ये इनकम जनरेशन तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन इनको रिबेट्स नहीं मिल रही. ऑन द रिवर्सिबल, बिहार यूपी receives more than 200. Bihar UP receives more than 200 or around 150 rupees for every 100 rupees contributed to the central government. To be contributed to the central government. अब ये देखो, यूपी बिहार दे तो 100 रुपीज दे रहे हैं, अगर 100 रुपीज भी देते हैं तो उनको जो मिल रहा है वो 150 रुपीज या 200 रुपीज मिल रहा है. तो ये साउदर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स के बीच का गैप क्रिएट होता जा रहा है कि कुछ स्टेट्स जो इनकम जनरेटर हैं उनको रिसीविंग नहीं है और जो रिसीव कर रहे हैं ज़्यादा उनको जनरेट नहीं कर पा रहे. तो दूसरा स्टेट इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्ट करता है कि व्हेन दे आर we can do just one thing, that we can say that is undeveloped states, so that's why we are spending more, but you are spending from last so many long years, तो उसका तब भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा. तो फिर अच्छी बात है ना, नलायक बन के प्रॉफिट कमाते रहो. क्या मुझे नहीं आता कुछ भी, सिखाते रहो. इंटेलिजेंट हो के आपको एक बार सिखा के लेके जाओ जी. सो वो कहते हैं तो बेनिफिट ले रहे हैं कि दे बिकम अंडरडेवलप्ड एंड दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द सेंटर, दे आर गेटिंग ऑल द फाइनेंसेस, परफॉर्मेंस ग्रांट्स, सब परफॉर्म ग्रांट्स उनको मिल रही हैं, कंट्रीब्यूट वो कुछ करते नहीं. तो ये डिबेट क्रिएट होती है कि हाउ यू कैन गिव मोर फाइनेंस टू द अंडरडेवलप्ड स्टेट्स. फर्दर एक और डिफरेंसेस क्या है, बॉटम 25% ऑफ द स्टेट्स, बॉटम 25% ऑफ स्टेट्स रिसीव्ड 22% of transfers, 22% of transfers funds, transfer funds. जो बॉटम 25% स्टेट्स हैं वो 22% रिसीव फंड्स ले रहे हैं, जबकि साउथ अफ्रीकन ब्राजील में 36% दिया जाता है, मतलब उनको कम मिल रहा है. वो कहते हैं अभी भी जो बेचारे अंडरडेवलप्ड स्टेट्स है ना उनको आप कम पैसे देते हो. जो डेवलप्ड नेशंस हैं ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, दे आर प्रोवाइडिंग 30 to 36% टूवर्ड टू द अंडरडेवलप्ड स्टेट, जो बिल्कुल नीचे वाले 22% 25% स्टेट्स होती हैं. तो अभी देखो डिबेट हो गया, हम कहते हैं कि इंटरनली हम कह रहे हैं कि वो ज़्यादा फाइनेंस ले रहे हैं हमसे, लेकिन अगर डेवलपमेंट स्टेट्स के बेसिस पे देखा जाए तो उनको फाइनेंस अभी भी कम मिल रहा है. तो दैट इज टू बी अ डिफरेंट रिटर्न्स आर कमिंग और डिफरेंट ओपिनियंस आर कमिंग टुवर्ड्स द सेम थिंग. Further, UP appears to be dependent on central. UP appears to be dependent on the central transfers. Central transfers because of their population. Because of their certain part of UP are richer than certain part of UP are richer than some of regions in other states. Some of the regions in other states. What is this? Bimaru? Can anyone go for its acronomy? It's acronomy actually. Can you define this?
कभी नहीं सुना बीमारू? सुना है ना बीमारू स्टेट्स? स्टेट्स लगा देती हूँ, अब शायद समझ में आए। बीमारू स्टेट्स, ओके राइट डाउन। बिहार, महाराष्ट्र कि मध्य प्रदेश? प्रदेश तो आएगा, मध्य प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी। It is to be considered as Bimaru from 1971 to 2011. इनको एक बीमारू स्टेट्स बोला जाता है। इन स्टेट्स में इंडिया की 57% पॉपुलेशन है। राजस्थान बिग वन, MP big one, UP big one, Bihar big one. These only 4 states occupy 57% population of India. तो इनके ऊपर आधी 57%, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इन 4 स्टेट्स में है, तो इनके ऊपर ध्यान देना लाजमी है, इनके ऊपर थोड़ा और फाइनेंस देना ज़रूरी था, which has been decreases to be now twice. पहले 57% थी स्टार्टिंग में, जो हमने शुरू किया 57% पॉपुलेशन जो इंडिया की है इन स्टेट्स में लाई करती थी, अभी वो 50% रह गई है, मतलब थोड़ी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है इन स्टेट्स में, अभी भी आधी पॉपुलेशन इंडिया की इन स्टेट्स में है। तो somewhere somehow it is important to consider these states very seriously. इन स्टेट्स को थोड़ा ध्यान से समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 4 southern state population is lower than UP and राजस्थान। अब वो कहते ये यूपी एंड राजस्थान 2 स्टेट्स की अगर पॉपुलेशन को ही ऐड ऑन किया जाए तो वो साउथ के 4 स्टेट्स की पॉपुलेशन के भी बराबर नहीं आती, मतलब ये फिर कम रह जाते हैं, ये दोनों ज़्यादा है। तो 4 स्टेट जो अर्निंग स्टेट्स हैं उनको एक साइड रख दो और ये 2 स्टेट्स को एक साइड रख दो, तो भी उसकी पॉपुलेशन इक्वलाइज नहीं हुई। तो आपने तो पहले ही डिसाइड कर लिया अंडर फाइनेंस कमीशन दैट यू विल डिवाइड द रिसोर्सेज ऑन द बिहाफ ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया, तो आपको पॉपुलेशन के बेसिस पे इसका मतलब इन सब स्टेट्स को फाइनेंस मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज दैट एक रीजन तो देखो बट ऑब्वियस है, जो स्टेट जितना ज़्यादा पॉपुलेटेड होगा, पॉपुलस होगा, पॉपुलेशन से बड़ा, पॉपुलेटेड नहीं पॉपुलस होगा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उस स्टेट में उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उतनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम कम होगी। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू टेक एन एग्जांपल ऑफ गोवा, सिक्किम एंड हरियाणा एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे महाराष्ट्र इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इजंट इट? वो फाइनेंशियल कैपिटल है, सबसे बड़ा फाइनेंस कहाँ से आ रहा है पूरे स्टेट इंडिया का? महाराष्ट्र से। वो फाइनेंशियल कैपिटल है। दिल्ली इज नॉट फाइनेंशियल कैपिटल, दिल्ली इज एक्चुअली जस्ट अ कैपिटल। सो फाइनेंशियल कैपिटल इज महाराष्ट्र, स्टिल इट इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड एज अ पर कैपिटा इनकम पे टॉप पे, तब भी वो पर कैपिटा इनकम पे टॉप पे नहीं आता। क्यों? पॉपुलेशन का डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया और गोवा एंड सिक्किम का डिनोमिनेटर छोटा है, पॉपुलेशन वो भी आउटपुट वो भी उतनी कर रहे हैं 50-50, लेकिन उनकी पॉपुलेशन घर में लेने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन 5 लोग हैं। आप भी 20,000 ही बना रहे हो लेकिन आप बांटने वाले 100 लोग हैं, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा पर कैपिटा। इसलिए वो कहते हैं कि ये स्टेट्स जो कि पॉपुलेशन के बेसिस, स्टार्टिंग में हमने बात की ना जब पहले स्टार्टिंग फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बनाया तो पॉपुलेशन और एरिया ही मेन कंपोनेंट थे, धीरे धीरे कंपोनेंट्स ऐड हुए, तो पॉपुलेशन एंड एरिया के बेसिस पे ही उन्होंने इस 4 स्टेट्स को डिवाइड कर दिया कि इन सबको अलग रख दो, क्योंकि ये स्टेट ही इकोनॉमी को डैमेज भी करने वाले हैं। रिसोर्सेज जो पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव चैनल की होती है, जरूरी नहीं है कि वो नुकसान ही पहुंचाएगी। तो समवेयर समहाउ दे आर अ क्रिएटर ऑफ द स्टेट्स एज वेल एंड देयर द destruction of the state as well. That's why they have given a basic importance to these 4 states. And further, total fertility rate of these 4 states are very high. That's why population is high. That was 5.5 something in these states, but now it has been decreased to 2.3% India की भी। तो इन्हीं की वजह से भी टोटल फर्टिलिटी रेट बढ़ती है और इन्हीं की वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ती है। तो स्टेट इन्हीं के, देखो इनका हमारा पहली बात इनकी पॉपुलेशन हो गई, फिर इनके एरिया भी आ गया, एरिया में भी सारे बड़े स्टेट्स हैं, फिर हमारी इसकी टोटल फर्टिलिटी रेट हो गई। ये क्या है?
5 पॉइंट्स में से बताएं मुझे। पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, परफॉर्मेंस, टोटल फर्टिलिटी रेट नहीं था ना, टोटल फर्टिलिटी रेट ही तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का पार्ट था। तो उन्होंने इसको भी कहा कि ये भी फर्टिलिटी रेट इनकी ऑलमोस्ट 5% थी, जो अब कम हो गई 2.3% हो गई है एवरेज, नॉट पर परसेंट बट एवरेज बेसिस पे। I told you what does it mean कि a female can produce 5 children and a female can produce 2.3 children. So that is to be the total fertility rate that has been decreased. That was much more into these states. That's why increase the population. तो इन states को उन्होंने बीमारू states को बड़ा important दिया और इनको special finance provide किया जाता था development के perspectives को बुलाने के लिए। एक one more point is per capita income of the southern states are greater than the northern states. इन सबसे per capita income भी इनकी सबसे लो है। यूपी के ऊपर तो बेचारे की बर्फ में बात गिरी है पॉपुलेशन की वजह से, नो डाउट। यूपी इज अ बेसिक प्रोडक्टिव स्टेट, isn't it? But still population is much more, so that's why per capita is not coming to your hand. Output ही नहीं मिल पाता आपको। And southern state contribute 23.5%, whereas northern states only 9.7 state. साउथ और नॉर्थ के जो हम डिफरेंस की बात कर रहे थे ना, they contribute only 9.7% of total GDP of India. Total India GDP में northern states सिर्फ 9.7% contribute करते हैं, जबकि southern states 23.5% contribute करते हैं, जिसमें से महाराष्ट्र अकेला 10% GDP contribute करता है national income। हरियाणा gives you 2.5% I believe। ऐसे हर स्टेट का यू मस्ट बी नोइंग कि पूरे आपका पूरा स्टेट टोटल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 2-3% हर स्टेट करता है, महाराष्ट्र 10% करता है। यहाँ पे नॉर्दर्न इट्स 9.7 नॉट 97%, 9.7% पूरे नॉर्दर्न स्टेट्स को मिला के देखो ना। 2% हमारा हुआ पंजाब का, 2% हरियाणा का हुआ, 2% गुजरात इसका, हिमाचल 3% हिमाचल का हुआ, तो ये मिला के 9% ही बन रहा है हमारा, 97%, 9.9%। एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र आ गया सबसे बड़ा। तो 10% अकेला महाराष्ट्र कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है ना, तो हमारे में ये आ गया अंडर डेवलप, ये यूपी वाला, राजस्थान वाला, तो इनके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑफ, तो ये फाइनेंस कमीशन में ही समहाउ डिस्कस कर लिया जाता है कि क्योंकि फाइनेंस कर रहा है ना, पैसा बांटना है, तो ना तो ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और पैसा लेकर सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। जो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए, 100 रुपये से ज़्यादा ले जाते हैं और हरियाणा लेके 20-30 रुपये आपका देता 100 रुपीज़। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम रिसीविंग एंड इनकम गिविंग टू द सेंट्रल एंड स्टेट। दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीमारू स्टेट्स। नाउ वन मोर लास्ट थिंग इज दैट, एज यू वर सेइंग, व्हाट इज द रोड मैप फॉर 16 फाइनेंस कमीशन? 15 फाइनेंस कमीशन अभी खत्म होने वाला है, 3 is over, 24-25 will go, है ना, 26 में 26 में खत्म हो जाना है। तो वी स्टार्टेड मेकिंग सम रोड मैप फॉर द फ्यूचर कि फ्यूचर में फाइनेंस कमीशन जब वैसे अपना पैसा बांटेगा तो कैसे, क्या रोड मैप आपको फ्यूचर में दिखता है कि क्या पैसे को बांटने के लिए कुछ और नया काम करना पड़ेगा। क्योंकि वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जीएसटी काउंसिल हैज बीन टू बी अ इंडिपेंडेंट बॉडी। तो आपको ये सोचकर चलना है कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी इतना पैसा इकट्ठा कर रही है, आप उससे पैसा लेकर खर्चोगे, तो समवेयर समहाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ सो मच। ये तो हमने इस ईयर में ही हमने स्टार्ट किया था ना जीएसटी, इसी टाइम पीरियड में 21 वाले सेक्शन में। तो अभी आप 4 साल तक उसके रिजल्ट्स देख लोगे, तो आपको जब नया फाइनेंस कमीशन बनाओगे तो आप उस चीज़ को बड़ा क्लियर होगा कि सेंटर कितना पैसा देती है हमें खर्चने के लिए। तो जीएसटी को जो इम्पोर्टेंट प्ले होगा उसमें रोल होगा। फिर जो है टैक्स रेट्स, वो टैक्स रेट कौन डिसाइड कर रहा है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल अपने टैक्स रेट डिसाइड कर रही है, कौन सी कमोडिटी पे कितने % टैक्स लगेगा, स्टेट कितना लेगी और सेंट्रल कितना रहेगी। तो गवर्नमेंट के पास अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने का हाथ ही नहीं रहा, सोर्स ही खत्म हो गया। अदरवाइज गवर्नमेंट व्हाट यूज्ड टू डू, इफ गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज द फाइनेंसेस, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेस, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स है, चाहे वो इनकम का टैक्स है, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स है, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द टैक्सेस, बट नाउ दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय GST council only. So government is not having any source to increase the finances. Government is supposed to be depend upon the
जीएसटी काउंसिल होंगे। तो ये हमें जब फ्यूचर में हम अपना फाइनेंस कमीशन बनाएंगे तो हमें बड़ा प्लान आउट करके चलना पड़ेगा कि अब सेंट्रल के पास पैसा कमाने के साधन जो है वो कम हो गए, दैट ऑल द डिसीजन विल बी टेकन बाय द सेंट्रल जीएसटी काउंसिल ओनली। फर्दर दे सेड दैट फंडिंग ऑफ डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, they said that 15th Finance Commission has given a separate much more funding to the defense and security. That's why in the previous American economy is the biggest कंज्यूमरेबल इकोनॉमी, वो खुद 1% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसका मतलब सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज से। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी तीनों चीज़ों में चलो वी आर डूइंग गुड। सो वी आर एक्सपोर्टिंग राइस टू US and Dubai, European countries. If we will stop giving rice to other nations, what will happen? Like we have done. अभी किया हमने, बासमती बंद कर दिया, तो क्या हुआ? प्राइस शूट अप, US में प्राइस बढ़ गया। इसी के चलते अगर कल को US कह दे या चाइना कह दे या रशिया कह दे कोई पेट्रोल नहीं मिलेगा, प्राइस शूट कर जाए, मिलेगा ही नहीं। प्राइस शूट तो कर दो, चाहे 20 करोड़ रुपया दे दो, हम नहीं देंगे। नो कंट्री स्पॉट, एवरी कंट्री इज अडॉप्टिंग अ डीग्लोबलाइजेशन। वी आर सेइंग दैट ना, लेट्स गो फॉर डीग्लोबलाइजेशन। देन कैन वी सर्वाइव? वी कैन नॉट। इंडिया का फूड सर्वाइवल हो जाएगा, we'll find out the resources, we'll find out the alternatives, we are Indians, but what will be hampered? हम टेक में जीरो हो जाएंगे। हमारी सबसे लूपहोल जो है वो है हमारा हार्डवेयर। हम टेक्नोलॉजी में बिल्कुल जीरो है। वी आर जस्ट कॉपिंग द थिंग्स, वी आर नॉट क्रिएटिंग थिंग्स। इंडिया इतने सालों में आज तक अपना सिर्फ एक जहाज बना पाया, बाकी सारे जहाज हम बाहर से मंगा रहे हैं। और अगर बाहर से आ रहे हैं तो उसको चलाने के लिए और उसको सीखने जाना पड़ता है, और उसमें कुछ खराबी हो जाए तो फिर सारा जहाज भेजना पड़ता है या वहाँ से बंदे बुलाने पड़ते हैं। डू रिपेयर, वी डोंट नो हाउ टू डू इट एंड दे आर सेलिंग अस व्हिच आर द ऑब्सोलीट थिंग्स। जो खराब हो जहाज को वहाँ बेच रहे हैं, हम ले रहे हैं। एवरी कंट्री इज स्पेंडिंग सो मच ऑन डिफेंस। हैव यू एवर थॉट ऑफ, आई एम जस्ट बिट ऑफ out of track my subject, but it's very important to understand for international relationships. Have you ever thought of in US is in a most strongest economy, Yes. super economy. US represents its superpower how? कैसे करके? Through its military. Through its military. Yeah. US अपने आप को बॉस कैसे बता रहा है? वो जहाँ कोई किसी कंट्री का पंगा होता है कहता है हाँ मैं ठीक करता हूँ, है ना? He used to rush upon between and then say all settle down. नहीं तो कोई नहीं, तुम चलो मैं ठीक करूँ। He used to come up in between and he's just trying to force it from only defense. वो अपनी पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ डिफेंस के थ्रू। अफगानिस्तान में they stay for long years, पूरा अपना पैसा लगाया, everything they did, they ultimately उन्होंने collapse कर दिया पूरा अफगानिस्तान। And ultimately, when the power changed in US, then the people said आपने वहाँ 1 साल तक अपने लोग बिठा रखे हैं, वहाँ पे अपनी कनॉपीज, आपने अपने टेंट्स, आपने सब कुछ सेटअप कर दिया। 1 साल तक आपकी फोर्स रहेगी तो दे नीड थिंग्स ना। उन्होंने पूरी फोर्स स्टार्ट कर दी, पूरी वहाँ मिलिट्री अकेडमी बना ली अपनी। दे सेड दैट लेट देम कम बैक। अल्टीमेटली जो पॉइंट पर उन्होंने स्टार्ट किया था कि हम इस कंट्री को तालिबान से अलग निकालेंगे या हम उसको उससे अलग करके जाएंगे, छोड़ेंगे, निकाल देंगे, आपको हेल्प करने के लिए आए हैं हम। अल्टीमेटली तालिबान को ही हाथ में उनकी सौंप के वापस आ गए। फॉर द 1 year दे स्पेंड देयर ऑल फाइनेंसेस एंड अल्टीमेटली दे कम बैक। द सेम थिंग इज डन बाय ऑल द countries. If you must have gone through the history as well, because you need to have the history in the subject. इंडिया में ब्रिटिशर्स वर दैट दे वर क्रिएटिंग कॉलोनीज इन ऑल द स्टेट्स, है ना? सब जगह को कॉलोनीज बना रहे थे। इंडिया में भी बनाई हुई थी, सब जगह कॉलोनीज बना रखी थी। व्हेन कॉलोनीज क्रिएटेड दे वर क्रिएटिंग देयर पार्ट्स। कॉलोनी कैसे क्रिएट होती थी? 4 लोग आके बैठ जाएंगे तो कॉलोनी थोड़ी बन जाएगी। हाउ इट हैपेंड? मिलिट्री। वो अपनी पार यहाँ बेचते थे, यहाँ पे सारा रूल मिलिट्री के रूल आ गया, अंदर आ गया। तो वी आर द पार्ट ऑफ द कॉलोनी, वट एवर दे विल से वी हैव टू फॉलो इट एंड दे विल गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। ब्रेन वो होगा हमारा।
ड्रेनेज ऑफ रिसोर्सेज, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हो गया हमारा, लेट इट डन. एट द सेम थिंग हैपेंड इन मेनी ऑफ द कंट्रीज, बट व्हेन इट एक्चुअली हैपेंड द थिंग इनटू देयर कंट्री ओनली, जर्मनी में जब हिटलर आ गए तो उन्होंने कहा कि ये तो हमने 4 जगह लड़ाइयाँ छेड़ दी, ये कॉलोनियां बना के बैठे, लेट देम पीपल आस्क बैक. हमने जितना इंडिया से रिसोर्सेज लेने थे ले लिए, उनको वापस बुलाओ. व्हेन दे गो बैक, तभी हम आपसे कहते थे भारत ने आज़ादी मिली थी, हमने ली नहीं थी. 2 लोग खड़े हो जाएं तो कि हाँ जी हम हमारे देश से जाओ, तो वी सॉरी वी कांट. अगर ऐसे होता तो हम पहले ही 10 साल पहले आज़ादी ले लेते. तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ, नो डाउट. एक तो है कि आप किसी के घर में ज़बरदस्ती बैठे हो, वो चुप करके आपसे बैठा है, एक वो थोड़ा सा बोल भी रहा है, तो आप बोलने वाली जगह से जल्दी आ जाओगे. तो दैट्स वाई इधर तो देयर सुभाष चंद्र बोस एंड गांधीज एंड अदर पीपल वर जस्ट अगेंस्ट देम, दे वर क्रिएटिंग अ chaos फॉर देम. एंड द सेकंड थिंग वाज दे वर हिमसेल्फ वर नॉट रेडी, क्योंकि उनके अपने घर में लड़ाई होगी थी. तो दे सेड दैट लेट्स गो बैक. वंस दे वेंट बैक फ्रॉम दिस प्लेस, व्हाट दे डिड कि अगर ये कंट्री को हमने इतने साल इनसे फाइनेंस लिया, इनसे इतने रिसोर्सेज लिए, अगर इनको हम ठीक ठाक छोड़ गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. ये तो कल को सुपर पावर ना बन जाए, क्योंकि हम रिसोर्सेज ले रहे थे इनसे. आओ डिवीजन कर. उन्होंने कहा आप अब देखो, सिंपल सी बात है, आप किसी के घर को कब्जा करो, उसके बाद आगे कुछ और लोग आ जाएं, जो असली हरारकी थी वो खत्म हो जाए. जो अब हरारकी आएगी वो कहेगी ना लाओ अब चाबी दो मेरे हाथ में, मैं हूं यहाँ का ऑनर. तो आप क्या कहोगे? नहीं, मैंने जिससे ली थी मैं तो उसको दूंगा. Isn't it? जब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो किससे ऊपर किया था? प्रिंसली स्टेट्स कौन कौन सी थी? बेसिकली किसके अंडर थी वो? मुगल्स के अंडर. उन्होंने किससे ली थी? मुगल से ऑनरशिप ली थी समवेयर समहाउ. एंड मुगल्स आर कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. तो उन्होंने जब वो यहाँ से जाने लगे तो जिन्ना जी ने कहा कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कम्युनिटी, लाओ जी चाबी दो इंडिया के हाथ में हमारे. नाउ यू आर गोइंग बैक, दैट कंट्री इज टेकन बाय यू पीपल, बाय योर सीनियर हेड्स, बाय द मुगल्स. दैट इज माई क्लेम ओनली, सो गिव इट टू मी. तो मुझे चाबी दो ना. मुगलों का राज होना चाहिए इस इंडिया के ऊपर, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का राज होना चाहिए. बट दे सेड दैट नो, आई हैव टेकन दैट, आई कैन डू वन थिंग, आई कैन डिवाइड इट. आधा बांट देते हैं वो. चलो फिर हमारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी, हमने कहा नहीं जी आ जाओ भाई भाई इकट्ठे हो गए. बट अदरवाइज दैट इज द ओनली थिंग. व्हेनेवर यू आर टेकिंग थिंग्स, अफगानिस्तान में यही हुआ, दे टू केट कि आपके यहाँ से सारी हम वो हटा देंगे इन्फिल्ट्रेशन. अल्टीमेटली वो उन्हीं को, सदाम को, उनको इस्लाम को ही वो उनकी पकड़ा के, ISI को उनकी चाबी पकड़ा के वापस आ गए. आपसे ही लिया था, साल भर आपके ऊपर पैसा भी खर्च किया, और वो जो आपको नौकरी लगी थी वो पाकिस्तान उठा के सारा सामान ले आया फॉर देयर ओन कंट्री. So now the thing is going on into the same thing is going on into Israel and Palestine. Hamas is, जो ये फिलिस्तीन्स हैं वो कहाँ से आए थे? अल्टीमेटली वो जर्मन से ही निकले हुए थे. तो जूस थे, उन्होंने जूस ने ही पहले द पार्ट ऑफ इजराइल में आके शरण लिया था. व्हेन दे स्टार्टेड काटिंग दिस पीपल, ना जो इसको निकालना शुरू कर दिया जर्मन से, तो जर्मनी ने कहा कि अब हम इन लोगों को नहीं रखेंगे, निकालो. तो ये यहाँ पे देखो पॉलिटिकल डिसीजंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. अब जब वो कंट्रीज निकाल रही थी तो कुछ कंट्रीज ने साफ कह दिया कि हम क्यों लें किसी कंट्री के रिफ्यूजीज को, वी डोंट वांट, हमें नहीं लेना. फ्रांस वाज अ कंट्री, आई बिलीव, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. फ्रांस सेड दैट वी विल नॉट टेक केयर ऑफ एनी रिफ्यूजीज फ्रॉम एनी कंट्री. Israel said, okay, if the bunch of people are coming, let them come. They said, they came and they started spreading their population. They are keeping the people of other people from there only. उनको हटा के उन्होंने पूरा अपना कब्जा कर लिया Jews ने. और जो रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी थी वो सेग्रीगेट हो गई. अल्टीमेटली वो इतनी सेग्रीगेटेड थी कि उनको एक वो गाजा एक प्लेस पे आके, उसे गाजा पट्टी बोलते हैं, गाजा प्लेस पे जाके उनको एक्सक्लूडेड कर दिया. उसके उधर है इजिप्ट. तो उन्होंने कहा कि अगर ये और करते हैं स्प्रेस तो दिल कम टू अस, वो हमारी जगह में आएंगे. अब वो क्या था, जिन जो कंट्री में लोग थे वो तो बेचारे कम होते गए, और जो आप आए हो वो पॉपुलेशन बढ़ा के हमें पीछे करते गए. सो वी वर सेइंग, अब मैं कहाँ जाऊँ पीछे जाके, कहीं तो जाऊँगी ना, मैं इजिप्ट के बॉर्डर पे स्टेगनेंट हो गई. तो वी सेड दैट इजिप्ट प्लीज एक्सेप्ट अस. इजिप्ट से नो कि अब हमारी लड़ाई होगी आपस में दोनों की. तो दे हैव कम इन द ट्रीटी कि हम आपस में किसी चीज़ को लेके, रिफ्यूजीज को लेके लड़ेंगे नहीं. नाउ देयर हैज बीन ट्रीटी बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट दैट वी विल नॉट गो फॉर एनी वॉर.
नाउ द पीपल आर गोइंग सेग्रीगेटेड, वो गाजा के अंदर पूरे पीपल आ गए। अब ये भी एक कम्युनिटी का तरीका होता है किसी नेशन का कि आप एक नेशनल सिक्योरिटी का एक रूल है कि आप अपने कंट्री में अपने लोगों के खिलाफ हेलीकॉप्टर और वॉर नहीं जनरेट कर सकते। कभी हो सकता है कि हम अपनी कंट्री में कश्मीरियों इसके कश्मीर में थ्रू टेररिस्ट के अगेंस्ट हम लड़ाई करनी शुरू कर दें, हम नहीं कर सकते, हम अंदर नहीं करते, हम बाहर करते हैं लड़ाई। कभी कंट्री के अंदर हम अपनी आर्म फोर्सेस, अपनी डिफेंस फोर्सेस को यूज नहीं करते अपनी लोगों के अगेंस्ट। हाउ डू वी नो दैट दी पीपल आर माइन और इट्स अदर वन? तो कंट्री के अंदर अब इजराइल अपने ही लोगों के अंदर थोड़ी लड़ाई करना शुरू, हमास के अंदर ही थोड़ी लड़ाई करना शुरू कर देगा। हमास वाज अ पीपल लाइक द सेम द टेररिस्टेड ग्रुप इनटू द पाकिस्तान और कश्मीर। वो है तो हमारी लोग ना, जगह तो हमारी है। वो लोग 4 लोग आके कहे नहीं हम आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमास इज लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल, दोज आर सेइंग वी आर, हम फिलिस्तीन, हम यहूदियों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने क्रिएट भी खुद ही किए थे। अब उनको पैसा, हमास को पैसा कहाँ से मिल रहा है? दूसरी कंट्रीज से, कि हम आपके साथ है, लड़ो। एंड जस्ट लुक एट द स्टुपिडिटी ऑफ अमेरिका। अमेरिका इज प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द इजराइल, लड़ो। और उधर से जब फिलिस्तीन्स कहते हैं कि हम तो भूखे हो गए, पैसा नहीं है, 2 ट्रक मेडिसिन इनको भी दे दो, 2 ट्रक फूड इनको भी दे दो। They are providing food and shelter and health facility to the Gaza Patti people, and they are providing alkanaries to the Israel people. That is the thing are going on by the America. Now that's why there comes an opinion. They said that कुछ लोग जो अभी भी अमेरिका के कुछ बुद्धिजीवी हैं, वो कहते हैं कि अपने आप को प्रूव कितनी बार करना पड़ता है? एक बार करना पड़ता है कि आई एम द बॉस, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू प्रूव अगेन एंड अगेन दैट आई एम योर बॉस। आप किसी की भी समझदारी को, किसी की इंटेलिजेंस को एक बार जान लेते हो और वो हमेशा के लिए बन जाती है। या तो कहते हो नलायक है, या कहते हो इंटेलिजेंट है, या तो आप कहते हो कि यही बॉस है, यही वर्ल्ड लीडर है। तो आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए हर बार डांटना जरूरी नहीं है, जो अमेरिका करता है। अमेरिका अपने आप को प्रूव करने के लिए सिर्फ क्या कर रहा है? आर्म फोर्सेस। दे सेड दैट America should not prove themselves just by the defense forces. They should put it all the resources जो वहाँ दूसरे countries को finance देने के लिए कर रहा है और दूसरे देशों को उसके लिए कर रहा है, they should put up their own development only. क्योंकि आने वाले सालों में other developing nations are coming in front of you for your contradiction. So if you'll go through the international stories, you'll got to know कि कितनी चीज़ें, एक तो अगर आप philosophy पढ़ते हो और second अगर आप international relationships पढ़ते हो, आपका हॉरिजन बहुत बढ़ता है। rather than going through with शायरीज and rather than going through with this all other nuisance stuff, read up international relationship. आपको से पता चलता है कि इतने बड़े कंट्री को लेकर आपका डिसीजन, एक इंडिविजुअल का डिसीजन, जैसे ट्रम्प आया उसने सारे 20 बंदे वापस बुला लिए, एक व्यक्ति ने, और 1 साल तक वो फाइनेंस कर रहे थे, एक बंदे ने कह दिया वापस बुलाओ सारे, दे गो बैक। एक बार जर्मनी में हिटलर ने कहा सारे बंदे वापस आ जाओ, ऑल 15 ईयर्स इंडिया को ऑक्युपाई करे वो छोड़ छाड़ के इंडिया को चले गए। सो लुक एट दिस पावर दैट इज नॉट टू बी टेकन बाय द वन पीपल वाज कमिंग एंड सेइंग एनीथिंग एंड योर पीपल आर फॉलोइंग, दैट इज टू बी टेकन बाय मेनी सो लॉन्ग। आपको उस चीज़ के लिए बहुत बड़ी अपनी से रखनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमने डी ग्लोबलाइजेशन से स्टार्ट किया था कि डी ग्लोबलाइजेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट कमिंग क्राइसिस को देखकर वी हैव टू फॉरवर्ड। इंडिया को अपने आप को प्लान कर लेना चाहिए कि कल को जितनी भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सब बंद हो जाए, इंडिया में सारे कॉल सेंटर बंद हो जाएं, इंडिया की आधी पॉपुलेशन जो है ना अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, बिकॉज वी डोंट हैव अदर सोर्स। वी आर अ चीप इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। 10,000 रुपये फॉर होल नाइट वी विल वेक अप, व्हेन दे आर वेकिंग वी विल लाइक टू वेक अप विद देयर टाइम। हम 10,000 रुपये में उनके टाइम के ऊपर जागने के लिए तैयार हो जाते हैं। Easy, cheap English speaking people are available, which is not in China. That's why we are growing up into services sector. No other reason is there. हमारा कोई सर्विस सेक्टर में कोई टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ गई है, कोई हमने नया कोई इन्वेंशन नहीं किया है। वी आर जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर स्पीकिंग पीपल। दैट्स वाई दे सेड दैट आप डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो, दैट इज टू बी अ थ्रेट फॉर इकोनॉमीज एज वेल समवेयर समहाउ। एंड अमेरिका नीड टू अंडरस्टैंड, अमेरिका और चाइना को ये चीज़ पता चल चुकी है कि समवेयर समहाउ आने वाले टाइम पीरियड में डी ग्लोबलाइजेशन का प्रोटेक्शनिज्म जिसे बोलते हैं
वो बढ़ने वाला है. So to keep that protectionism, we need to have a strong political relationship. Done? चलिए जी, thank you so much.